Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to our YouTube channel, Nagin Best Digital Learning. So I hope you all are fit and fine. So after completing a little bit part of the same chapter, A Trump of Surgery, today we are going to start with the part number 2 of the same chapter. अभी तक जो हमने पढ़ा, according to that, we come to know that Tricky was a small dog. His mistress, Mrs. Pomfrey, was a rich lady. She pampered her dog, she overfed him, and Tricky never refused food anytime. He was always greedy for the food. The dog became very fat. His eyes were bloodshot. He could hardly walk. Mr. Harriet was a vet. He saw that the dog could fall very ill, so he advised Tricky with a small dog. His mistress, Mrs. Pomfrey, was a rich lady. She pampered she pampered the dog and she advised uh, she was advised to give the dog less to eat. He advised her to cut down the sweet things and he asked her to give the dog plenty of exercise. But Mrs. Pomfrey did not heed his advice. So the dog became very fat, and Mrs. Pomfrey thought the dog had no energy. She thought it was just because of malnutrition. So she started giving the dog many extra things to eat. She gave him much nutrition diet. She gave him more energy food. She gave him malt, cod liver oil, and Horlicks. She gave him wine to drink. All this made the dog very ill. The dog became very fat. One day, the dog stopped eating. He vomited again and again. He kept fainting all the time. Mrs. Humphrey was very much worried about him. She called Mr. Harriet, who was a vet. He knew that Tricky was suffering because of overfeeding. He had already made his plans. He said the dog would have to be kept in the surgery for a fortnight. But Mrs. Pomfrey, was in tears, but she had to agree to it. Mr. Harriet carried the dog in the car to his surgery. There he put him in a separate room, didn't give the dog anything to eat for 2 days. He did not give the dog any drugs. He gave him a lot of water to drink. On the third day, the dog showed signs of improvement. Then doctors started giving him some light food, and after 3 or 4 days, Tricky was back to normal and he started running. So, according to that, we come to know about that poor dog. So, from here, we just start. I had made my plans in advance. मैंने अपने प्लान्स एडवांस में ही बना के रखे हुए थे, पहले से ही बना के रखे हुए थे. द ओनली वे was to get Tricky out of the house for a period. सिर्फ एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उसके घर से निकालना है. दैट वाज द ओनली वे. अगर उसकी रिकवरी करनी है तो उसको उस घर से निकालना होगा, क्योंकि घर पे तो उसको क्या मिल रहा है? ओवर फीडिंग, नो एक्सरसाइज, नो गेम्स, नो फिजिकल एक्टिविटी, just eating and eating, nothing else. So the best way for his treatment, that uh, he has to take out from the house for a period.
So I suggested that he be hospitalized. तो मैंने सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए फॉर अबाउट a fortnight to be kept under observation. उसको हॉस्पिटलाइज्ड करा देना चाहिए, मतलब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए, उसको एडवाइस दी गई फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, 15 दिन के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखने के लिए 15 दिन के लिए उसको हॉस्पिटलाइज्ड कराया जाए, बिकॉज दैट वाज द ओनली he planned na. He had already made the plans that the only treatment for Tricky was to take out of take out of him out of the house. So Mr. Harriet suggested to Mrs. Humphrey that Tricky should be hospitalized for about 15 days to be kept under observation. Now the lady, young poor lady, almost won't, क्योंकि उसको तो बहुत प्रॉब्लम थी इन चीजों से। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कि अब दैट डॉग जो था वो लिटरली वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड किया हुआ था मिसेस फम्फ्री से। वी कैन से दैट वो बहुत पैम्पर्ड था। सो ऑलमोस्ट क्या होता था कि उसको खाने के लिए वो बहुत कुछ देती रहती थी। सो अब हुआ क्या कि अब उसने क्या किया, बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दिया। अब जब ये चीज पता चल रही है कि वो इतना खाने वाला था, क्योंकि वो ग्रीडी था, उसको कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी दे देते थे ना, तो वो एग्री था उस चीज को खाने के लिए। सो दैट वाज द ओनली पॉइंट। ठीक है, तो अब अगर उसको बचाना था, अगर उसको ठीक करना था, तो उसे कुछ समय के लिए उसको घर से बाहर रखना पड़ेगा। सो अब जो डॉक्टर था उसने एडवाइस दी कि मुझे इसको अपनी निगरानी में रखना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है 15 दिन के लिए, तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। बट द पुअर लेडी, जो वो लेडी थी ना, क्योंकि वो अपने डॉग से लिटरली बहुत प्यार करती थी, शी वॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट swooned। अब वो लगभग ना अपने होश ही खो बैठी थी इस बात को सोच के कि मेरा डॉग मेरे से दूर चला जाएगा। एंड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई if he did not see her every day। और वो इस बात पे बिल्कुल निश्चित थी कि यदि उसने किसी को रोज नहीं देखा ना, तो उससे डिस्टेंस होने की वजह से, उससे दूर होने के कारण उसे दुख होगा डॉग को, और वो मर जाएगा कि वो डॉग मेरे बिना रह नहीं सकता। तो अगर वो मुझे रोज नहीं देखेगा ना, तो वो बहुत दुखी होगा एंड डाई, और मर जाएगा। इतना उनके बीच में लगाव था। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन मैंने एक बहुत स्ट्रिक्ट जो है ना रूल फॉलो किया, बिकॉज ट्रिकी वॉज लिटरली वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इनफैक्ट उसको बचाने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता था, और कोई रास्ता नहीं था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और बल्कि मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि बिना देर किए इसको यहाँ से चुपचाप ले चलते हैं, अभी ले जाना ही बेटर है उसको। followed by Mrs. Humphrey's wailing। अब उसने डॉक्टर ने क्या सोचा कि अब मैं इसको ना देर नहीं करता, और इसको जल्दी से जल्दी ना यहाँ से ले जाता हूँ। तो उसने सोचा कि मेरे लिए बेस्ट, उस डॉग के लिए बेस्ट यही होगा, बेहतर यही होगा कि मैं उसे बिना देर के यहाँ से ले जाऊं। और जो मिसेस हम्फ्री थी ना, उसके रोने के साथ, मतलब वेलिंग, वो बहुत रो रही थी। एंड आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार
carrying the little dog wrapped in a blanket. अब वो क्या कह रहा है कि क्या हुआ कि जो डॉग एक कंबल में लपेटे हुए, मतलब मैंने क्या किया उससे वो लिया डॉग को, वो रो रही थी और मैं कार की तरफ बढ़ने लग गया, उसको ब्लैंकेट में wrap किया हुआ था. The entire staff was roused and the maids rushed in and out, bringing his day bed, his the night bed, favorite cushions, toys, and rubber rings. अब पूरा स्टाफ जो था, जितने भी अब वो सब क्या कर रहे थे, मतलब इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए कि कोई उसका बिस्तर ला रहा है, कोई रात का ला रहा है, कोई उसकी फेवरेट जो उसका मैट है, कोई उसके टॉयज ला रहा है, कोई उसकी रबड़ रिंग्स ला रहा है. सभी इसी उछल में लगे हुए थे, हलचल चल रही थी. कोई ब्रेकफास्ट बाउल, कोई लंच बाउल, कोई सपर बाउल, मतलब इस तरह की आइटम्स को कलेक्ट कर करके दे रहे थे. Realizing that my car would never hold all the stuff. अब सब इधर उधर घूम रहे हैं, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, मतलब भाग दौड़ सी हो रही थी. ये जानते और समझते हुए कि मेरी कार में सारा सामान कभी भी नहीं आएगा. रियलाइजिंग दैट, उनको इस बात का पता था, वो उस चीज को देख पा रहे थे, दैट माई कार नेवर होल्ड द स्टफ, इतना सारा स्टफ मेरी कार में नहीं आएगा. एंड आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया. एज आई मूव्ड ऑफ, मैं जैसे ही वहां से चला, मिसेस पम्फ्रे was with a despairing cry threw an armful of the little cords through the window. क्या हुआ कि उसने कहा कि जैसे ही मैं चला ना, मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, मैं चला तो मिसेस पम्फ्रे ने एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भरी जो है ना, मतलब एक चीख के साथ खिड़की से ढेर सारे छोटे छोटे कोट फेंके, उसके उसके जो कॉर्ड्स थे ना वो फेंके. ठीक है. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. मैंने उसको देखा, जब मैं टर्न कर रहा था मिरर से देखा, दैट एवरीबडी वाज इन टीयर्स, कि हर किसी की आंखों में आंसू थे. कैन यू इमेजिन कि सिर्फ एक डॉग की वजह से इतना अटैचमेंट एक डॉग से, कि अगर वो जा रहा है तो उसको सबको इतना ज्यादा फील हो रहा है, और इतना ज़्यादा कि वो मिसेस पंफरे तो सभी रो रहे हैं, और मिसेस पंफरे खिड़की से उसके कोट फेंक रही है छोटे छोटे, और वो रास्ते के कोने में मुड़ने से पहले उसने शीशे में देखा कि एवरी वन वॉज इन टीयर्स. सभी सभी आंसुओं से भरे हुए थे, सभी की आंखों में आंसू थे. सो आउट ऑन द रोड I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Out of the road. आउट ऑफ द रोड मतलब अब वो कह रहा है कि जैसे ही अब वो निकल के मुड़ के आ गया, अब उसने देखा सब रो रहे थे, अब बाहर सड़क पे आते ही, रोड पे आते ही, आई ग्लेंस डाउन एट द पेथेटिक लिटिल एनिमल गैसिपिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड. अब मैंने क्या किया, मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि मैंने उस बेचारे छोटे से पशु की तरफ देखा, जो मेरी तरफ की गद्दी पर हाँफ रहा था, गैसिपिंग हाँफ रहा था. I patted the head, मैंने उसका सिर थपथपाया, and Tricky made a brave effort to wag his tail. और उसने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, अपनी बहुत कोशिश कर रहा था अपनी पूंछ को हिलाने की. Poor old lad, बेचारा बूढ़ा. लेड वैसे लड़के को बोलते हैं, बट यहाँ पे लेड डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है. आई सेड, मैंने कहा, बेचारा बूढ़ा कुत्ता, you haven't a kick in you, but I think I know I have a cure for you. I haven't a kick in you, but I think
आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैंने कहा कि मुझे पता है कि तुम में बिल्कुल भी चुस्ती नहीं है, मतलब तुम बहुत ही सुस्त हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज जरूर करूँ। उसको कहा गया कि मुझे पता है कि तुम इतने चुस्त नहीं हो, लेकिन आई एम डैम श्योर कि मैं तुम्हारा इलाज जो है वो जरूर कराऊं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टिल हियर। Okay, now we do have some questions in front of you that we need to find out. Question answers of Trump of surgery. So, as you know, we do have the question: is the narrator as rich as Tricky's mistress? That you need to find out. Okay, you need to find out these answers from the chapter, whatever you have learned in this. So, I hope you will able to do that। आपको ये बताना है कि जो नरेटर है वो उतना ही रिच है जितना ट्रिकी की मिस्ट्रेस है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सी, दो नॉट क्लियरली स्टेटेड, ऐसा क्लियरली नहीं दिया गया है। देर आर इंस्टेंसेस इन द स्टोरी विच सजेस्ट दैट द नरेटर इज नॉट एज मच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसिस पॉम्फ्रे। दीज आर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे क्लियरली तो मेंशन नहीं है, बट कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। While the narrator is able to provide Tricky with a warm, loose box as a bed at Mrs. Pumphrey's house, Tricky has a day bed, night bed, cushions, toys, rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball, a whole wardrobe of fitted cots and perhaps many more things. ये सब चीजें उस डॉग के पास थी, लेकिन जो नरेटर था वो उसको इस तरह की चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकता था। When he arrives to take the dog with him, Mrs. Pumphrey has her entire staff at her disposal to transfer all the Tricky's belongings to डॉक्टर्स कार। कि वो सभी चीजें ना, उसके जो सर्वेंट्स थे वो सभी ट्रिकी का जितनी बिलोंगिंग्स थी, ट्रिकी की का जितना भी सामान था वो उसकी गाड़ी में रख रहे थे। On hearing from the doctor about Tricky's gradual recovery, Mrs. Pumphrey sent along 2 dozen eggs at a time, along with bottles of wines and brandy, all in order to help in Tricky's speedy recovery. तो यानी कि जो उसकी मिस्ट्रेस है वो तो पता लग ही रहा है कि वो एक बहुत लग्जरियस लाइफ जो है वो जी रही है, वो तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में और उसके पास तो बहुत कुछ है। But finally, when she calls upon the narrator to take her recovered back home, she comes in a and 30 feet of gleaming on obvious reference to the okay, so it means we can say that the narrator is very rich according to his mistress. Now next question. Read the next question, Fang. How does he treat the dog? अब dog को how does he treat, उसने dog को कैसे treat किया? Uh, what is the treatment that was given by Mr. Harriet? We need to explain. And why he is tempted to keep Ricky on as a permanent guest. उसको permanent guest के रूप में वो क्यों रखना चाहते थे? And why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a trump of surgery? In these questions we need to find out from the chapters. I hope you will understand till here. Thank you. Have a nice